Namaste, and welcome to Sathology, debunking mythology. Sathology means science or truth, a study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. Never use the word mythology for our Shastra, which is in the back here. Ramayana, Mahabharata, Puran, Veda, Upanishad, and I have a good collection here, including Sanskrit dictionary, Hindi dictionary. Now today, I'm going to focus on culture versus religion. As ये हिंदी में भी बोलूँगा मैं, तो आप लोग समझ सकते हैं culture religion में क्या फ़र्क, what is the difference in culture and religion. So the culture is the, for example, सनातन धर्म culture, morning में उठना, जप करना, और like what we do at home, culture, Hindu culture, the way you eat, spices you put, the music you sing, that is culture. And also how you interact with each other. Namaste, we touch the feet of the elders every morning, and that is culture. And I did it, so आप भी करते होंगे, बड़ों का आदर सत्कार, this is culture. And so it's a Hindu culture. And the religion means, according to the West, means जो चलता है religion, जैसे मस्जिद में जाना, वेस्ट मस्जिद भी वेस्ट हो गया, और सिनागोग भी वेस्ट हो गया, चर्च भी वेस्ट हो गया. तो उधर मतलब पूजा अलग, मंदिर मस्जिद ये सब अलग, मंदिर नहीं, जब मस्जिद और ये गिरजाघर एंड यहूदियों का सिनागोग ये अलग, और कल्चर अलग. तो जब वेस्टर्न ऑथर्स जब कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, वो क्या करते हैं कि एसिमिलेशन एंड इनकल्चरेशन, मतलब कल्चर को अडॉप्ट करेंगे लेकिन रिलीजन बदल देंगे. ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी है. ये एक बुक है, बड़ी फेमस बुक है, द कोलंबियन एक्सचेंज. ये बुक है, ये एल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबी ने लिखा है कि बायोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 1492. ये बुक है, एंड ये अमेरिकन स्टडीज पे बेसिस है, और इसमें कोलंबस की इतिहास है, कोलंबियन एक्सचेंज का. नाउ इसमें जो भी डेटा है, दैट इज प्रेजेंटेड फ्रॉम क्रिस्टोफर कोलंबस पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिस्टोफर कोलंबस में. तो शुरू करता है, इफ यू लुक एट इट, तो आपको कल्चर और रिलीजन का मतलब समझ में आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है. क्योंकि इसको अगर आप नहीं समझे, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कन्वर्जन फैक्ट्री. Conversion factory runs on culture versus religion. So they want to change your religion but keep your culture. So when some people say Hinduism is a way of life, first of all Hinduism नहीं बोलना चाहिए. You should never say Hinduism, because ism means temporary, imaginary, or it's a man created thing, is ism. So when a Western author refers to Hindus as Hinduism and does not refer to Christianity as Christianism, so he is making a bias. For him, Christianity is the real thing, ism is something imaginary, not scientific basis. So that's how they demean the culture. So never use the word Hinduism. कभी भी यूज नहीं करिए Hinduism. आप बोल सकते हैं हिंदू कल्चर, हिंदुत्व, हिंदूनेस, या बोल सकते हैं सनातन धर्म और सनातनी, और योग पथ, योग है, और वर्णाश्रम बोल सकते हैं. क्योंकि कल्चर मतलब हमारे उसमें कल्चर एंड रिलीजन इज द सेम. सो सनातन धर्म इज बोथ ए कल्चर एज वेल एज रिलीजन, अगर हम उसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में देखेंगे. लेकिन अगर हम वैदिक के हिसाब से देखें तो धर्म है. धर्म मीन्स सनातन धर्म मीन्स धर्म ऑफ द सोल. लेकिन ये लोग वेस्टर्न लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं. They are thinking in a different way. They are thinking that I can keep your culture, but I will change your religion. ये उनका mindset है. इसीलिए लोग proselytizing missions में जाते हैं, preaching missions में जाते हैं, अफ्रीका आते हैं, इंडिया आते हैं, because they want to make sure that the religion aspect, which is concerned with divinity, deity, वो disappear हो जाए. So that's how they work. They enter and they gradually replace everything with their own thing. जैसे उन्होंने इंडिया में क्या किया, साधु का कल्चर अडॉप्ट किया. They are wearing orange dresses, they are wearing cross. लेकिन हिंदू को लगता है कि अरे ये तो ऑरेंज ड्रेस है,
ये तो हिंदू साधु ही होगा, तो अपने जो गांव में लोग हैं उनको सुनने चले जाते हैं। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी दे यूज्ड फ्रॉम 1492 ऑनवर्ड्स, है ना। एंड धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने इंडिया में यीशु गीत बना दिया, यीशु वेद बना दिया, है ना। मेरी भी पुस्तक है द हिंदू बाइबल, वो उनके लिए है, क्योंकि वी आर यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी ऑफ देम so that they can also read out for them to some of them they don't want to मतलब religiously they hate to refer to भगवत गीता। लेकिन अगर मैं उसको बोलूं हिंदू बाइबल है तो बाइबल नाम से आधे लोग आ जाएंगे, बिकॉज इट्स ए बाइबल, उनके हिसाब में सब बैठा हुआ है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड रिलीजन। सो सनातन धर्म इज बोथ ए कल्चर इन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एंड ए रिलीजन ऑल्सो। जैसे रिलीजन का अर्थ इनके हिसाब से क्या होता है कि आपको जुड़ना है वापस, तो वो तो योग का भी मतलब होता है, जुड़ना है वापस, परमात्मा से जुड़ना है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने नेटिव को हटाने के लिए एक इमेजिनरी फिगर बना दिया है कि ये मेरे भगवान है, आपके भगवान अलग है, ये रियल है, आपके झूठे हैं, ये कर दिया है। और लेकिन उसके आसपास सोशल अप्रूवल इतना ज्यादा कर दिया है कि इजीली जो लोग बहकावे में आ जाते हैं। जैसे अफ्रीका के लोग हैं, कंप्लेन करते रहते हैं बार बार कि हमारी लैंग्वेज छीन ली, हमारा रिलीजन छीन लिया, लेकिन हमारा कल्चर रख दिया। तो कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें क्रिश्चियनिज्म का इफेक्ट आ जाता है सारा। तो इसीलिए अफ्रीका का कोलोनाइजेशन थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज उनकी लैंग्वेजेस भी गायब कर दी गई है। अफ्रीकन कंट्रीज में जितने 55 कंट्रीज हैं, शायद 55 कंट्रीज हैं, उसमें से 19 कंट्रीज तो इंग्लिश बोलती हैं और 14 कंट्रीज फ्रेंच बोलती हैं और बाकी पोर्चुगीज या डच बोलती है, या एंड कुछ कंट्रीज स्टिल टॉक द नेटिव वाला लैंग्वेज करती है, एंड सम कंट्रीज टॉक अरेबिक ऑल्सो। तो वहां पे उनका लैंग्वेज बदल दिया, उनका कल्चर अडॉप्ट कर लिया और रिलीजन नया डाल दिया, उनका लोकल रिलीजन भुला दिया। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ कोलोनाइजेशन। क्योंकि अगर आपका धर्म बदल गया, मतलब नहीं बोलूंगा, आपका मत बदल गया, पंथ बदल गया, तो आप उनके जैसा हो गए अभी, बट दे विल रिटेन सुपीरियरिटी, क्योंकि वहां से आया है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज में हम जाते हैं, हिंदू बहुत हर कंट्रीज में है, तो इंडिया ऑलवेज रिमेन्स द होम, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि उनका धर्म वहां से आता है, रामायण महाभारत वहां से है। तो इसी तरह ये स्ट्रेटेजी चलता है, कल्चर वर्सेस रिलीजन। इसको समझना बहुत जरूरी है आपको कि ये लोग कैसे सोच रहे हैं कि आपका रिलीजन रिप्लेस कर देंगे और कल्चर आपका अडॉप्ट कर लेंगे। तो अभी आप ना घर के ना घाट के, तो आप खाएंगे तो देसी तरीके से, हाथ से खाएंगे। तो भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम हिंदू हैं, लेकिन उनका रिलीजन कोई और है, क्योंकि कल्चर्स के हिसाब से नाम रखे, लेकिन रिलीजन कुछ और है, रिलीजन कुछ और है। ऐसे करके वो दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द लोकल पॉपुलेशन, गेट इनटू पॉलिटिक्स एंड एक्वायर द लैंड, है ना। ये इनका चलता है। एंड पॉलिटिशियन अभी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू इंटरफेयरिंग इन इंटेलिजेंस सेटअप। भारत के लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग कहते हैं लिव एंड लेट लिव। अगर ये आपका ये माइंडसेट रहेगा लिव एंड लेट लिव, तो आपको रहने नहीं देंगे, बिकॉज इट इज देयर कल्चर। उन्होंने सेम किया, उन्होंने अफ्रीका में किया है, उन्होंने साउथ अमेरिका में किया है, हर जगह किया है, एशिया में किया है। फिलीपींस जैसा कंट्री, आपने मेरा शो देखा होगा हिंदू कनेक्शन टू फिलीपींस, उसमें मैंने मैप से दिखाया कि वहां पे एक भी लोकल नाम की कोई जगह बची नहीं है। जहां भी लोकल टेंपल दिखा, जहां पे हिंदू टेंपल थे, खमेर के राजा वहां पे जाते थे, उधर कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। पुराने सारे कंटेनर को आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को दे दिया। आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी का पर्पज ये होता है सिंक्रेटिज्म, कि दुनिया के हिस्ट्री को एक ही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। दैट मीन्स प्री बीसी, पोस्ट बीसी, और उसको प्री हिस्ट्री मान के उसको म्यूजियम में डाल दिया जाता है कि देखो तुम्हारा इतिहास है, लेकिन अब नहीं है, अब तुम्हारा रिलीजन कुछ और है, तुम्हारा कल्चर हम वैसे रखेंगे, लेकिन तुम्हारा लैंग्वेज बदल देंगे। तो इसलिए कभी भी हिंदी को रोमन लेटर्स में नहीं लिखिए, और कभी भी जो हिंदी को हम लोग तो हिंदी बोलते हैं, मैं अमेरिका में रहता हूं, तो इसलिए मेरा थोड़ा इंग्लिश भी रहता है बीच में। तो ये समझने का जरूरी है आपको। अगर हम इसको समझेंगे नहीं, तो हम लोग गलती करेंगे गलत लोगों पे ट्रस्ट करने की, और हम लोग सनातन धर्म को कमजोर बनाएंगे। जैसे अमेरिका में बहुत सारे संस्कृत स्कूल चलते हैं, बहुत सारे इंग्लिश स्कूल चलते हैं, और यूनिवर्सिटी में तो पूरा के पूरा कॉलोनाइज एजुकेशन है। कीप द कल्चर
रिमूव द रिलीजन, दैट्स द वे इट वर्क्स। और इसको कैसे समझेंगे? ये बुक है एल्फ्रेड क्रॉसबी की, एल्फ्रेड डब्ल्यू क्रॉसबी जूनियर, फॉरवर्ड बाय ऑटो वॉन मेरिंग। मैं इसके कुछ पन्ने पढ़ूंगा शुरू के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपने हिसाब से लिख रहा है, यूरोपियन इतिहास में लिख रहा है कि हाउ यूरोपियंस आर थिंकिंग, लुकिंग एट इट, है ना। ये बोलता है कि मैं पहुंचा रोड्रिगो दे ट्रियाना, पिंतास फोरकासल, साइटेड लैंड, और उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस बहामा पहुंच गया। और फिर बोलता है ओल्ड वर्ल्ड एंड द न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड मतलब यूरोप, न्यू वर्ल्ड मतलब साउथ अमेरिका, ये बोल रहा है। तो बोलता है कि इट वॉज मोर देन 10 मिलेनिया हैड बीन ए टेनुअस थिंग ऑफ वाइकिंग वॉयजेस, क्योंकि साउथ अमेरिका को वाइकिंग्स ने भी ढूंढ लिया था। ड्रिफ्टिंग फिशरमैन वाया पॉलिनेशिया, 12 अक्टूबर 1492 को ये लोग इधर पहुंचे। ओके, और ऐसा लिखता है द टू वर्ल्ड्स विच गॉड हैड कास्ट संडर। ये यूरोपियन डिस्कवरी पीरियड की बात हो रही है, ये हमारा डिस्कवरी पीरियड नहीं है। हमारे रामायण में साउथ अमेरिका पुष्कर द्वीप माना जाता है, उस पर सोमनस शिखर है। हमारा विजन अलग है, हमारा दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि रामायण में पूरी पृथ्वी का जो अब हमको दिखती है विजिबल पृथ्वी, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा है, जहां जहां सुग्रीव की सेनाएं गई। उस समय से आज तक कुछ बदला नहीं है। जो पुराणों का डिस्क्रिप्शन है, किस तरह 7 तरह के लिंक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में लैंड है, फिर समुद्र है, वो अलग डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अभी जो हमको दिखता है वो हमको दिखता है कि इट इज द टू वर्ल्ड, जो हमको दिखता है वही अवेलेबल पृथ्वी है। मेरी नई बुक पढ़िएगा द ओरिजिनल एटलस, उससे आपको पूरा आइडिया मिलेगा, क्योंकि मैंने सूर्य के मूवमेंट से उसको डिस्क्राइब किया है। तो लिखता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मानसिकता पता लगेगी और हमको भी एक आगाह हो जाएगा कि क्या हमको नहीं करना चाहिए। बोल रहा है, एल्फ्रेड बोल रहा है, ट्रेंड टुवर्ड्स बायोलॉजिकल होमोजेनिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट सिंस द रिट्रीट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स मतलब सब जब बर्फ घटी और उसको बायोलॉजिकल होमोजेनिटी मतलब कि सारे यूरोपियन के जैसा दिखे, ये उसका कहने का मतलब है। तो इन्होंने साउथ अमेरिका में यही किया, यूरोपियन आदमी, स्पेनिश हो या पोर्चुगीज हो या ये भी हो, जो यूरोपियन नस्ल का आदमी है, और औरत नेटिव। इसीलिए मेक्सिको में देखेंगे मिस्टीजो, जो कि मिक्सचर बिटवीन यूरोपियन मैन एंड नेटिव फीमेल, इंडियो फीमेल, उसको इंडियो बोलते हैं क्योंकि इंडिया को ढूंढ रहा था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस को कभी ग्लोरीफाई मत करिए, कभी भी। ये बहुत ही उसका पर्सनल हिस्ट्री आप देखेंगे तो यू विल बी शॉक्ड। मैं कभी उसका पर्सनल हिस्ट्री पे बात करूंगा तो आई विल टेल यू हाउ ही वाज हायर्ड, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल वर द रिजेक्ट्स ऑफ देयर सोसाइटी, इसलिए उनको भेजा जाता था ताकि ये जाएगा, इसका कोई परिवार भी नहीं है, अकेला घूमता रहेगा और जाएगा और करेगा, ये उसका ऐसा था। और यूरोपियंस थॉट कि वो लोग एशिया के बाजू में हैं और वो बैक टू यूरेशिया अगेन, एंड दे वर आल्सो स्ट्रक बाय द फ्लोरा एंड फाना ऑफ द आइलैंड्स दे हैड जस्ट डिस्कवर्ड। तो कोलंबस लिखता है, ना मैंने भेड़ देखी, ना मैंने बकरे देखे, नहीं मैंने कोई बड़ा जानवर देखा, लेकिन मुझे वहां पे कुछ कुत्ते दिखाई दिए जो भौंक भी नहीं रहे थे, और सारे जो पेड़ थे वो हमारे पेड़ों से अलग, क्योंकि साउथ अमेरिका में फल वाले पेड़ होते हैं और यूरोप में जाएंगे तो सारे पेड़ होते पाइन्स, नुकीले पेड़ होंगे, फल होता नहीं है क्योंकि उसमें कोल्ड वेदर रहता है। तो दे हैव वेरी मिजरेबल लाइफ। अगर यूरोप में इंपोर्ट्स बंद हो जाए तो वहाँ के मॉल्स खाली पड़ जाएंगे, खाने के लिए कुछ है नहीं वहाँ पे, है ना, कुछ उगता नहीं है, ज़्यादा कुछ उगता नहीं है। इटली में कुछ उगता है क्योंकि वहाँ थोड़ी गर्मी है, बट वहाँ पे वो लोग ऑलिव्स उगाते हैं और ये सब चीज़ें उगाते हैं। इटली वगैरह में होता है, सदर्न फ्रांस में होता है, डेयरी होती है। उसका भी कभी इतिहास बताएंगे कि डेयरी कैसी पहुंची यूरोप में, क्योंकि यूरोप तो हमेशा बर्फ से ढका रहा है, कोल्ड वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, और मेंटल इश्यूज तो ज्यादा ही होते हैं। तो लिखते हैं अल्फ्रेड भाई साहब, लिखते हैं अल्फ्रेड क्रॉसबी, ही राइट्स, distinctiveness of the human inhabitants of these islands struck Columbus as well। और उसको जो उसको नेटिव इंडियन, अभी इंडियन बुला रहे साउथ अमेरिकन को, उसको जो नेटिव इंडियन दिख रहे हैं
वो they were not like the black African and which he had already met people because they were coming to Europe, okay, and they were not, their hair was not kinky but straight like a horse hair, बाल सीधे होते हैं जैसे हमारे भी बाल सीधे होते हैं सबके, और and their head was very broad. वो उसने कहीं भी ऐसे लोग नहीं देखे थे, मतलब पूरा हिंदुस्तानी तरीके का उनका इंडियन, अगर हम इंडियंस देखेंगे तो इंडियंस लुक लाइक दैट, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन थी, तो ये थ्योरेटिकली गॉट दैट इन्फॉर्मेशन, तो उसने वेरीफाई किया अपने इन्फॉर्मेशन को. And the Arawak Indians were so impressed with the Europeans, their vessels, clothing, weapons, shapes and colors, that they thought them demigods and gathered around to kiss the Spaniards' hand and feet, marveling and believing that they had come from the sky. You know? And they were trying to see if they were flesh and bone like themselves. ये उसके ऑब्जर्वेशन है. अभी अरबक इंडियंस की बात कर रहा है, बहामा की, और बाद में क्या किया कोलंबस ने, सारे लोगों को मार दिया वहां पे, और वहां की औरतों को शिप कर दिया स्पेन में. ये काम किया था कोलंबस ने. तो ही इज now these observations are very important. तो उसने देखा कि क्योंकि अभी नए तरह के लोग पहुंचे हैं और यहाँ पे आदिवासी हैं, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाउ आवर क्लोथिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग वाज वेरी अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव फॉर देम. क्यूरियोसिटी तो होती है सबको, इनको भी हो रही है, इसको भी हो रही है क्यूरियोसिटी, इसको भी लग रहा है कि हमारे शिप, हमारे वेपन्स. तो ये जो लड़ाई हुई साउथ अमेरिका की, वो ही बिटवीन आयरन एंड स्टोन, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस इंडियंस वर यूजिंग स्टोन इम्प्लीमेंट्स एंड ऑल्सो स्टोन वेपन्स, और यूरोपियंस आए सारे आयरन के वेपन्स लेकर आए. सो बोथ ऑफ देम हैव द चेंज ओवर देयर. मेरी पुस्तक है एज ए काउंटर टू दिस अल्फ्रेड कॉस्बीज नरेशन इज कॉल्ड गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड. इसको जरूर देखिएगा आप, ये आपको उसमें अमेजोन पे मिल जाएगा या फिर आपको बार्न्स एंड नोबल्स में मिल जाएगा. तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि so why I'm telling you this narration, to make you understand the difference between the culture and religion. कि किस तरह a colonial mind thinks और किस तरह आपको सोचना है कि हम उससे बच जाएं. अभी भारत ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे रामचरितमानस है, हमारे यहाँ पे रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वेद व्यास की महाभारत है. We have lot of scriptures which are more advanced than anything Europeans have. बहुत ज़्यादा उनसे आगे है, लेकिन इनके पास वो सब रिटन मटेरियल नहीं है, लेकिन इनके पास बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं साउथ अमेरिका में. जब यूरोपियंस वहाँ पे आए तो वहाँ पे फ्लरिशिंग पिरामिड्स थे, जो टेम्पल बोलते हैं. हमारे टेम्पल थे वहाँ पे, मतलब सिमिलर कल्चर, हमारा और नेटिव अमेरिकन का कल्चर, मैक्सिकन, मायन, इनकाज, लिमा, इन सब का सिमिलर कल्चर है. उस समय ये सब शहर फ्लरिश हो रहे थे वहाँ पे. यूरोप था पॉवर्टी में और ये साउथ अमेरिका का फ्लरिश हो रहे थे. एंड दैट एरिया वॉज फिल्ड विथ सो मच वेल्थ. मैं आपको आइडिया दूंगा कि किस तरह जब बहामास गया, फिर वहां से ग्वाटेमाला आया, फिर वहां से वो बोट लेके ग्वाटेमाला आया, आइलैंड चेन पे क्यूबा गया, उसने कितना लूट मचाया और कितने शिप लूटे. एक एविडेंस मिलता है एस्टेक्स का 1521 का मिलता है कि वहां से 10,000 टन सोना चुराया गया मंदिर से. सोने से मड़ी हुई थी मूर्तियां, और मैं उसको बताऊंगा, मैंने तो अपने वीडियोस में कवर किया है. लेकिन अभी मैं इंडिया से आने के बाद, अभी इंडिया जाऊंगा, फिर इंडिया से आने के बाद मैं वहां पे टुलुम जाके उस एरिया को मैं कैप्चर करूंगा, उन टेम्पल्स को जहां से लूट हुई ग्वाटेमाला और बहामास के आइलैंड्स से, वहां से लूट हुई. तो ये वहां पे उस समय का जो, इसमें इस पुस्तक में उसका विवरण नहीं है, उनकी वेल्थ का विवरण इतना नहीं है. आगे जाके आता है कि कौन सी डिजीजेस ये लोग लेकर आए यूरोप की, उसके बारे में बात करूंगा मैं डिटेल में. लेकिन वो उसने ये नहीं लिखा कि उसने क्या देखा वहां पे, उसने ये नहीं लिखा. और कुछ जगह उसने हिंट दिया है कि वेनेजुएला का हिंट दिया है कि 14,000 कैटल, हेड ऑफ कैटल ग्रेज्ड इन एलानोस. मेक्सिको में इंटीरियर ऑफ द हेड ऑफ द यूरोपियंस बीइंग क्विकर टू अडैप्ट टू देयर ओनर्स. सो ये जो उसने ये विवरण दिया है कि किस तरह उधर जो एनिमल वेल्थ दिख रही है, लेकिन ये विवरण नहीं दिया मंदिर कितने हैं. व्हाई? बिकॉज द यूरोपियंस वांट टू हाइड द डिस्ट्रक्शन दे कॉज टू द नेटिव कल्चर्स ऑफ साउथ अमेरिका. पूरा चोरी,
एंड आई विल टेल यू, कहीं भी आप जाएंगे साउथ अमेरिका में, आपको हर जगह वहाँ के जो नेटिव्स हैं गाली देते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनका कल्चर भी छीना, उनका रिलीजन, उनका कल्चर को अडॉप्ट किया, उनका रिलीजन छीना और उनकी भाषा छीन ली। तो अभी आप वो पॉपुलेशन कभी उठ ही नहीं सकती, क्योंकि वो उठेगी भी तो उसको दबा दिया जाएगा, क्योंकि आपकी भाषा तो यूरोपियन है, आप तो कॉलोनाइज्ड है, आपके जो देवता है वो भी यूरोपियन है, आप तो कॉलोनाइज्ड हैं। तो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम टुडे इज कंप्लीटली कॉलोनाइज्ड। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा इग्नोर करते हैं, अरे भगवान तो एक है, हिंदू बोलते हैं ना भगवान एक है। नहीं, एक नहीं है। आपको सोचना है उनके तरीके से। क्या वो मानते हैं भगवान एक है? नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं हमारे भगवान है, आपके डेमीगॉड है, लिखा ना शब्द यूज किया। इसलिए मुझे इस्कॉन का भी जो कभी कभी डेमीगॉड शब्द जो यूज करते हैं वो देवताओं के लिए, इट इज टोटली रॉन्ग। ये कॉलोनियल शब्द है। देवता डेमीगॉड नहीं होते, डेमीगॉड देवता नहीं होते। डेमीगॉड मतलब आधा गॉड, मतलब इनका क्रिश्चियन गॉड का आधा गॉड इज डेमीगॉड, ऐसा नहीं है। देवता सुर असुर, सुर को ही देवता बोला जाता है, जो देव को फॉलो करे। देव मतलब विष्णु, हरि, और महादेव भी हम बोलते हैं, क्योंकि शिव जी और विष्णु की पूजा समतल रूप में होती है। कहीं ना कहीं पे शिव जी की पूजा होती है, कहीं पे शिव जी की सदाशिव के रूप में पूजा होती है। तो कभी ब्रह्मा को भी भगवान बोला जाता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन इन विच कॉन्टेक्स्ट इट इज बीइंग सेड, है ना। कभी कभी वेदव्यास को भी भगवान बोला जाता है, बट वो सब टेक्निकल डिटेल्स है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये बोल रहा है, एल्फ्रेड कॉस्बी बोल रहा है डेमीगॉड, देयर आर मेनी डेमीगॉड्स, मतलब उनके भगवान डेमीगॉड, हमारे भगवान भगवान, गॉड हमारे, डेमीगॉड उनके। तो इट इज ए बुक रिटन टू गिव क्रेडिबिलिटी टू द, इसमें थोड़ा सा सच भी है। वो बता रहा है कि किस तरह डिजीज हम लेकर गए यूरोप से, ये तो सच है कि उन्होंने जो पॉपुलेशन मरी है वो सारे हमारे यूरोपियन डिजीज से मरी है, क्योंकि यूरोपियंस बहुत गंदे तरीके से रहते थे। सिफिलिस की कॉमन बीमारी है, नहाते नहीं है, धोते नहीं है, और जहाँ पे भी वो मतलब मल मूत्र को पास करते हैं, उसके बाद उसका उनका क्लीननेस नहीं रहता। तो ये उनका इतिहास है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20th सेंचुरी तक। 20th सेंचुरी तक कुसुमलता केडिया जी ने हमारे शो पे उस पर बहुत डिटेल में बात किया है, उन्हीं के ऑथर्स को कोट करके किया है। लेकिन ये जो कोलंबियन एक्सचेंज बुक है, ये एक तरीके से जस्टिफाई करती है स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट को, जो साउथ अमेरिका में हुआ। और इसमें बहुत जगह इसने लिखा है, मैं बाद में कभी इसको पढ़ूंगा ध्यान से, लेकिन आज जो हमको कल्चर रिलीजन का फर्क समझना है वो हमको समझना जरूरी है। कल्चर में बिल्डिंग्स आ जाती हैं, तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े पिरामिड जो मंदिर हैं, सारे पिरामिड्स के ऊपर जो, जैसे अपने भारत में भी जो मंदिर होते हैं उनको विमान बोला जाता है। क्यों विमान बोला जाता है? क्योंकि उसके माध्यम से आप देवताओं को अप्रोच करते हैं या विष्णु के पास जाते हैं उनके माध्यम से, तो विमान है। तो विमान का मतलब ये नहीं कि टेम्पल उड़ जाएगा, लेकिन वो विमान इसलिए है क्योंकि आपको मन को मंत्र के माध्यम से वो भगवान तक पहुंचा देता है, इसलिए उसको विमान बोलते हैं। तो सारे जो पिरामिड शेप है विमान की शेप है। सो दे आर द शेप्स ऑफ अष्टक, 8 डायरेक्शंस, क्योंकि 8 डायरेक्शंस की पृथ्वी है। 10 क्यों नहीं है ये सोचने की आवश्यकता है ना। 10 क्यों नहीं है, 8 डायरेक्शन ही क्यों है? क्योंकि जो 8वीं जो 2 बाकी डायरेक्शन, एक पाताल जाती है, एक ध्रुव तारे की तरफ जाती है ना। तो इसलिए ध्रुव तारे की तरफ जाएंगे तो विष्णु का है। ये थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स है, लेकिन ओवरऑल आपको समझना जरूरी है कि मंदिर भी कल्चर का पार्ट है, और मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर ही उसके ऑब्जेक्ट्स को लेके अपने गिरजाघर या मस्जिद बनाना, इसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। जो भारत में हुआ 40,000 मंदिरों से, साउथ अमेरिका में ये पूरा वाइप आउट किया है इन्होंने। लाखों लाखों मंदिरों के ऊपर चर्च बनाए गए, लाखों। मैं भी पूरा पेचा में था, पूरा पेचा ट्राइब के थ्रू था, उनके एक भी रिलीजियस वर्शिप की पेज को छोड़ा नहीं इन्होंने। परिकुटीन का एक वॉल्केनो था मैक्सिको में, परिकुटीन में, उसके जब उसका मलबा गिरा तो उसके झूठ बोल बोल के। अच्छा, कल्चर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो थोड़े से इनोसेंट लोग हैं उनको मिरेकल्स बेचना, जैसे यूरोपियंस ने बेचा मिरेकल्स, जैसे झूठा डिएगो एक करके एक है, जैसे हुआन डिएगो मतलब जॉन डो, या किसी में बोलते हैं राम भरोसे, काल्पनिक नाम, किसी का नाम नहीं बोलता, रे राम भरोसे,
या फिर हुआन डिएगो, जॉन डो इंग्लिश में बोलेंगे। एक कल्पना वाला मिरेकल का पिक्चर बनाया ताकि जो लोग हैं उसमें बहका दे, और फिर 4 लोग बोलेंगे कि अरे भाई ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और हर जगह ये लोग तलवार लेके गए। भारत में तलवार लेके आए थे, लेकिन हमारे क्षत्रियों ने तलवार ही तोड़ दी। मार्तंड ने 1741 में उनको हरा दिया। लेकिन यहाँ पे वो कब से बैठे हैं? 1492 से 1741। 1741 तक इनके जो चर्च के पादरी है वो वॉरियर भी है। उसके पास एक हाथ में बाइबल रहती है, इमेजिनरी इनकी जो बुक है, और एक हाथ में उसके तलवार रहती है, और दोनों को लेके वो जाता है गांव बाय गांव। तो अगर कोई मानेगा नहीं तो इतनी सेनाएं देख के आदिवासी लोग डर जाएंगे, नेटिव लोग डर जाते थे। और फिर ये मिरेकल की फेक स्टोरी बताते थे कि अरे क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज बदल रहे हैं। तो मैक्सिको ने सबसे बड़ी गलती क्या की पता है आपको? मैक्सिको ने अपने इंडिपेंडेंस के समय में स्पेनिश लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया। सबसे बड़ी गलती उनकी ये होगी। तो यहीं पे वो चूक गए और इससे कॉलोनाइजेशन उनका पूरा हो गया। अब वो इम्पॉसिबल टू कम आउट अनलेस समथिंग ड्रास्टिक हैपेंस, कि वो लैंग्वेज को रिजेक्ट करें या फिर कोई मूवमेंट हो जो लोकल लैंग्वेजेस को आगे लेकर आए। ये सबसे बड़ी गलती हुई। वेनेजुएला की भी ये गलती हुई, ग्वाटेमाला की भी ये गलती हुई, कोलंबिया की भी ये गलती हुई, पेरू की भी ये गलती हुई। सबकी यही गलती है। अर्जेंटीना तो पूरा का पूरा कॉलोनी है, वहां पे नेटिव अमेरिकन ही नहीं है। बोलीविया, उरुग्वे, चिले का थोड़ा अच्छा कंडीशन है, पेरू का भी अच्छा कंडीशन है कि वहाँ नेटिव अमेरिकन बहुत है। और ब्राजील तो 45 to 50% कंट्री अनडिस्कवर्ड है। तो मेनी नेटिव्स आर सेव्ड बिकॉज ऑफ द जंगल। लेकिन उसके लिए लाइडर टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। मतलब भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्लोबल साउथ को इन नेटिव कम्युनिटीज की रक्षा करने के लिए भी लगाए। अमेरिका की ये मेरी नई पुस्तक देखेंगे, वो अभी एक्चुअली पीछे रखी हुई है, दिखाऊंगा अगले वीडियो में, द ग्लोब ओरिजिनल एटलस। जो अमेरिका में क्या नेटिव के साथ हुआ कि यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी यूज की गई। 110 मिलियन नेटिव अमेरिकन मारे गए क्योंकि यहाँ के जो नेटिव्स थे उनका इंट्रिंसिक कनेक्शन था मायन के साथ, एस्टेक के साथ नेटिव कनेक्शन है। मतलब अमेरिका में मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस फ्रॉम न्यू मैक्सिको, टेक्सास में हर जगह पिरामिड्स हैं। लेकिन अभी इनको छुपा दिया गया। बहुत सारे पिरामिड तोड़ भी नहीं पाए क्योंकि ज्यादा पिरामिड्स थे नहीं, क्योंकि वेदर इज वेरी कोल्ड, वेरी हार्श एज कम्पेयर टू मैक्सिको। लेकिन सेम है। चौकिया में एक है पिरामिड, इलिनॉय में, लोग देख सकते हैं जाके। आई एम गोइंग टू विजिट देयर आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम दिस ट्रिप। मतलब दिसंबर जनवरी में जाऊंगा उधर, और देन आई विल टेल यू मोर। सो द पॉइंट इज कि मंदिर को बचाना, उसके बाद कल्चर को बचाना, भोजन की सामग्री बचाना, भोजन का तरीका बचाना, भोजन किस तरह करते हैं बचाना, भोजन की सामग्री बचाना, वो तो कल्चर हो गया। इसलिए सनातन धर्म एक सभ्यता भी है, सनातन धर्म जो है एक रिलीजन भी है। हम लोग को रिलीजन शब्द आजकल बड़ा लोग नेगेटिव कर देते हैं, धर्म है, रिलीजन नहीं बोलना चाहिए। करेक्ट, हम आपस में बात करेंगे तो हम धर्म ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम इनके जगह बात करेंगे, इनके साथ बात करेंगे तो हम रिलीजन भी बोलेंगे, क्योंकि हमको उस भाषा में बात करना जो दूसरा समझे, दूसरे की बुद्धि के अनुसार टर्म्स यूज करना चाहिए। तो जैसे ये लोग करते हैं इनकल्चरेशन, हमको आवश्यकता है कि बहुत सारे हिंदू या सनातन धर्मी, सनातनी अपने कल्चर को फोर्सफुली रिप्रेजेंट करें। इसीलिए हम लोग सतोलॉजी में कोर्सेज करते हैं। डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स है, योग सूत्र कोर्स है, और अभी यूरोपियन हिस्ट्री का भी कोर्स शुरू होने वाला है कुसुमलता केडिया जी के द्वारा। जब आप इन कोर्सेज में ज्वाइन करते हैं तो हम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं धर्म को समझने के लिए। उसके बाद आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दोस कोर्सेज आर वेरी पावरफुल। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस यह है कि इतने सारे लोग हमारे कोर्स कर चुके हैं। एवरीवन हैज बिकम developed a strong interest in reading महाभारत रामायण। That is the goal of the course। वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर बेसिक्स क्लियर है, विच में हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं, देन उसके बाद आपको शास्त्रों में रुचि आ जाएगी। बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रेट दैट एंड मेक इट कॉमन फॉर योर लाइफ, देन इट विल हैपन। तो आज के जो टॉपिक है कल्चर वर्सेस रिलीजन, ये समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन बिजनेस। एंड में रीजन तो एक ही है, अर्थ संचयन। जमीन हत्या लो, फिर उसके बाद गुलाम बना। जैसे कि फ्रांस ने कंट्रीज में फ्रैंक डाल दिया, हम लोग देख ही रहे उसको, फ्रांस ने। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह साउथ अफ्रीका में इंग्लिश में बात कर रहे हैं वो लोग, और हमारे प्रधानमंत्री और हम सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। करनी चाहिए, हमको हिंदी में बात करनी चाहिए।
और कहीं इंग्लिश बीच में ऐड कर देता हूँ तो हमारा अर्बन पॉपुलेशन भी उसको समझे थोड़ा सा. सो वी हैव टू फाइट, यू टू अंडरस्टैंड दिस गेम, देन ओनली यू कैन प्ले फर्दर. नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे इसको, फिर उसमें हम लोग बह जाएंगे. सारे धर्म एक नहीं होते, सारे मत एक नहीं होते, सारे पंथ एक नहीं होते. क्लियर? सनातन धर्म में वर्णाश्रम जो है वो रिलीजन है, क्योंकि वर्णाश्रम के माध्यम से सनातन धर्म जो है उसको स्थापित किया जाता है समाज में, एक टूल है उसका. तो वर्णाश्रम, हम तो वर्णाश्रम के फॉलोअर्स हैं, है ना. 4 वर्ण 4 आश्रम, वो रिलीजन हो गया. लेकिन सनातन धर्म तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, अध्यात्म है वो तो पूरा. तो उसमें आत्मा परमात्मा का रिश्ता. लेकिन जब तक आप वर्णाश्रम में नहीं रहेंगे सनातन धर्म कैसे समझेंगे? दोनों चीजें. और हाउ विल यू डिबंक द कास्ट एक्यूजेशन अगर हम ये नहीं समझे तो? क्योंकि इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कास्ट. यूरोपियंस का, चर्च का प्रॉब्लम कास्ट. अभी कास्ट के इनकी अपर कास्ट कौन सी है? पोप का वाली कास्ट है, कार्डिनल वाली कास्ट है, ये कास्ट है इनकी. एंड लोअर कास्ट है कॉमनर्स. तो उसको छुपाने के लिए, या नोबल्स हैं और उनके फॉलोअर्स कॉमनर्स, उसको छुपाने के लिए जो दुनिया का सबसे साइंटिफिक सिस्टम है वर्णाश्रम सनातन धर्म, उसको एक्यूज करते हैं कि तुम्हारे इधर छुआछूत की बीमारी है. अनटचेबिलिटी सनातन धर्म में नहीं है, क्योंकि अनटचेबिलिटी इज चामेध्यम, जो कि ओनली फॉर द थिंग्स. जैसे आप किसी एक्सक्रीटा या जो शौचालय में जाते हैं उसको न छुए. सिर्फ गंदी चीजों को छूने का परहेज है, नॉट व्यक्ति का परहेज नहीं है. क्योंकि दशरथ महाराज जो है सभी को गले लगा रहे हैं. रामायण में हम देखते हैं भगवान राम किसी को भी, कोई को भी गले लगा रहे हैं. तो और पांडव सेवा कर रहे हैं सभी की, वर्णों की. तो हमारे शास्त्रों में नहीं है. तो अपने कास्ट प्रॉब्लम को छुपाने के लिए एक्यूज करते हैं कि आपके इधर कास्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने इनको अपने घरों में घुसने नहीं दिया. तभी कैसे करेंगे? तो तिल मिला रहे हैं कि हम जाके भी हमसे भारत छूट गया और अभी भारत के अंदर भी घुस गए हैं सब चर्च के माध्यम से. तो भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए वेटिकन का डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर दे. बड़ा आसान है, वो खत्म कर दे तो उससे उनका काम खत्म हो जाएगा. क्योंकि नाउ इट विल बी ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. अभी एम्बेसी नहीं है, एम्बेसी को बंद करा दिया जाए क्योंकि इट इज टू स्मॉल. इट इज ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन एम्बेसी इन इंडिया? ऐसा बोलना चाहिए, पूछना चाहिए. और भारत में देवबंद और बरेलवी भी बंद होना चाहिए. वो जिधर का धर्म है, जिधर का मत है, पंथ है, वहीं जाए, उधर उसको भेज देना चाहिए. नॉट फॉर, क्योंकि हमारे सनातन धर्म तो बड़ा स्पेशलाइज्ड है, कंप्लीट है. पूरे विश्व ही सनातन धर्म वर्णाश्रम में उसको समाहित किया जा सकता है. लेकिन ये स्ट्रेटेजी आप समझ रहे हैं? इसको स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूं क्या है कि दे ऑक्यूपाई द की प्लेसेस, और जो उनके अंदर प्रॉब्लम है वो आपको बोली जाएगी, है ना. जैसे अब मुसलमानों में प्रॉब्लम क्या है? अरबी सुपीरियर है, ये उनके लिए ईरान के लोग भी काफिर है. हम लोग तो है ही काफिर, उनके लिए ईरान के लोग भी काफिर है, क्योंकि वो सुपीरियर है ना. वो छुआछूत की बीमारी, वो अरबी सुपीरियर, अफ्रीकन सारे गंदे छुपा रहे. वो अच्छी बात है कि सऊदी अरेबिया में एमबीएस ने इंट्रोड्यूस रामायण. मैं बोलूंगा मेरी पुस्तक 1 Arrow 1 Kill को एमबीएस भी पढ़े और वहां पे उसको मेन स्ट्रीम टेक्स्ट बुक किया जाए सऊदी अरेबिया में, बिकॉज दैट विल एंश्योर कि एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद आपको प्रेरणा मिलेगी मेरी पुस्तक में इतनी नहीं कि आप वास्तविक वाल्मीकि रामायण भी पढ़ने वाले हैं, बिकॉज दैट इज द होल पर्पस ऑफ राइटिंग इट, कि लोगों को इतना अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन मिले ताकि ओरिजिनल बुक भी पढ़ने जाए. सिमिलरली मेरी 5 पांडवों वाली पुस्तक है. तो ये स्ट्रेटेजी से ये लोग काम करते हैं. जो अपनी कमी है उसको दूसरे पे थोप देना. जैसे वो उसकी कमी क्या है? अभी वो ये बोल रहा है कि हम लोग अच्छे दिखते हैं इनसे, तो उसको वो ये सोच रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि क्या नेटिव अमेरिकन भी हमको ऐसा सोच रहे हैं. ये उसके एजम्पशंस है. उनको लग रहा है कि हम लोग अच्छे दिखते हैं उनको. नहीं, वो तो कौतूहल को बता रहा है कि वी आर सुपीरियर, बोल रहा है कौतूहल से, उनके हमारे कपड़े देख के इंप्रेस है. क्या ऐसा भी हो सकता है नेटिव अमेरिकन सोचा हो गंदे से लोग आ गए, शिप में आ गए, लूटने आ गए, या मे भी भूखे नंगे हैं, उनको भोजन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि सब बीमार थे, सबके सब बीमार थे, तो दवा दारू देना है. लेकिन
जो है मेडिसिन देना है। बट द पॉइंट इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड a European will always describe the situation in a European way, and we have to write things in our perspective. So I really welcome what NCERT is doing now, replacing India with भारत, मतलब इंडिया हटा के भारत डालेंगे। तो ये जब तक आप ये समझेंगे नहीं, तब तक आप उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि किस तरह कॉलोनाइजेशन चलता है, कैसे कॉलोनाइजेशन होता है, किस तरह लोकल इंडस्ट्री को मारा जाता है, because they have to ensure you become completely dependent on them. और अगर किसी को ऐसा लगे अरे वो पुराना जमाना था, अभी नहीं, अरे भाई अभी भी वही चल रहा है, नहीं तो इतना कन्वर्जन क्यों होता? अगर कन्वर्जन, अगर जैसी कन्वर्जन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका की एम्बेसी क्यों पहुंच जाती, यूके की एम्बेसी क्यों पहुंच जाती, कोई दूसरी एम्बेसी क्यों नहीं पहुंच जाती? सब लोग पहुंचते हैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब कॉलोनाइजेशन कभी खत्म हुआ ही नहीं, क्योंकि कॉलोनाइजेशन का मेन पर्पस है रिसोर्सेज को छीनना, दैट्स द मेन पर्पस। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे। आज आपको कल्चर और रिलीजन के बीच में फर्क पता लगा कि कल्चर मतलब जो हमारा भोजन, मंदिर, घर बनाने का तरीका, आपस में मिलने का तरीका, ग्रीट करने का तरीका, ये सब कल्चर है ना। और रिलीजन इनके हिसाब से है, वो उनका मत है जो कि इस कल्चर से बाहर है, मतलब कल्चर को अपना लेना और रिलीजन थोप देना। इनके लिए दो अलग अलग चीजें। हमारे सनातन धर्म में वर्णाश्रम में एक ही है। सनातन धर्म को वर्णाश्रम के माध्यम से सोसाइटी में इंप्लीमेंट किया जाता है ना, वो नेचुरली एग्जिस्टिंग है वर्णाश्रम। भगवान कृष्ण बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते, मतलब चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म भागश, एग्जिस्ट करता है ह्यूमन सोसाइटी में, नेचुरली एग्जिस्ट करता है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस then we'll make conscious decisions. ये politicians को समझना बहुत जरूरी है। When we understand this, then we will make a real solution to decolonize our societies. Thank you. नमस्ते, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा ताकि लोग देखें, समझें एंड हमारे एफर्ट्स को भी थोड़ा सा उसका रिजल्ट्स मिले। नमस्ते, थैंक यू।